Good morning, dear students. Am I audible to you? Siddharth Nandita, can you Good listen to morning, me? sir. Good morning. Uh, First of all, very good morning to all of you. We are going to now read about balancing the equation. That is very much important chapter, and it will carry 1 to 2 marks, and it will come in your question paper. तो ये ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है? इस क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है बैलेंसिंग करने का. डैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो कल हमने यहाँ से छोड़ा था, हमने यहीं से स्टार्ट करना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. और ये बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, ठीक है? मीन्स आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा किसके इक्वल रहना चाहिए? रिएक्टेंट के एटम के इक्वल रहना चाहिए, ठीक है? रिएक्टेंट्स एटम विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट. ओके, सो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि हमें रिएक्ट करने के बाद क्या देगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? अब इसी समीकरण को हम देखेंगे कि इज इट बैलेंस और नॉट. इसको पहले देखने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है? डेट द बॉक्स इज ओवर हेयर. और हम इसको सबसे पहले जितने भी तत्व हमें वहाँ पे दिए, जितने भी एलिमेंट हम दिए हैं उसको हम एक साइड में लिखेंगे. उसके बाद से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका क्या है? ये आपका है रिएक्टेंट, ठीक है? और राइट हैंड साइड जो है आपका, ये क्या है? आपका प्रोडक्ट. क्या है? आपका प्रोडक्ट है. गॉट इट? समझ गए एवरीवन? अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या है? एसएस सल्फर, ओएस ऑक्सीजन. ओके, we are talking about balanced chemical equation. It is the present of atoms at left hand side should be equal to the right hand side. In short, you can say, in other words, the number of atom of each element remains the same before and after a chemical reaction. Means the atoms of reactant should be equal to the atoms of product. If it will be not equal, at then we are doing mistake and the reaction will not happen. Okay, because as already I told you, on adding 1 kg of sugar in a liquid, we will not get 2 kg of sugar for sure, because it's not a magic. We will only get what we are adding in. Okay, as per the mass of conservation, a law of conservation of mass, as you have earlier studied in class 9th, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of element present in the product should be equal to the mass of reactant. Got it, Sagar? So let us discuss about it, and let us start the chapter with the balancing of chemical equation. We have taken the example of zinc plus hydrogen sulfate, which will give you after reaction zinc sulfate plus hydrogen. We are going to write its element on a side, and afterward we will divide it in left hand side and right hand side, and afterward we will write its atom on left hand side and right hand side. Left hand side is your reactant and left hand side is your product. Okay, so reactants atoms are in zinc, as you can see over here, it's 1. It's 1. Okay, and when you are saying in hydrogen sulfate, you will say hydrogen as 2. How much? 2. Okay, in sulfur it is 1. Okay, and in oxygen it is 4. ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना कि जिंक में 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, सल्फर में 1 है, और एटम ऑक्सीजन में कितने एटम है? 4 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? और जैसे ही वो रिएक्ट होता है तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद आपका यहाँ पे देखो जिंक में तो 1 दिया है. गॉट इट? सो इट इज इक्वल. सल्फर भी आपका 1 दिया है, या सल्फर आपको 1 दिया हुआ है, तो डेट इज ऑल्सो इक्वल. Hydrogen over here it was 2, over here it is also 2.
means both are equal. Then what is the problem? Over here oxygen is also 4 or over here it is also 4. It means ki the product of reactions is just equal to the number of atom in reactant is just equal to the number of product. यानी कि जो atoms है reactants के वो product के equal है. It means कि हमें इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है. जो भी हमने atoms ऐड किए थे लेफ्ट हैंड साइड में वही हमें atoms मिले हैं राइट हैंड साइड में. गॉट इट मुस्कान? समझ आ गया? ओके, सो लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल. जस्ट ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड. व्हाट इज दैट कॉल्ड? हिट एंड ट्रायल मेथड. मतलब आपने हिंदी में पढ़ा हुआ तुक्का मारो, ठीक है? कुछ उसी प्रकार से ये भी है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है कि जो बैठ गया जो लग गया वो ऐसा ही है, ठीक है? यानी कि जिस बैट पे बॉल आ गई वो छक्का पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ उसी हिसाब से हमने करना है. तो आपको ये एग्जांपल हम दे रहे हैं. Fe ferrous H2O which is water, Fe3O4 and then H2, ठीक है? तो सबसे पहले हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिखना है. तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट लिख लेते हैं. तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो बॉक्सेस कि फेरस कितना है, वाटर कितना है, अब उसके बाद Fe3O4 एंड देन हाइड्रोजन का, ठीक है? इन हिंदी यू कैन से इट इज okay, it is Fe H2O Fe3O4 एंड H2. इसी को आपने क्या करना है, इसको आपने बैलेंस करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एटम्स लिख लेंगे. फेरस के लेफ्ट हैंड साइड पे, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हम देखते हैं कितने कहते हैं एटम है. नंदिता आप बताओगे फेरस के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? एक. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है सिद्धार्थ? सर एक बार और बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा, अब आवाज क्लियर आ रही है? ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में फेरस प्लस वाटर का जो आपने रिएक्शन करवाया है, तो वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. ओके, 2. वेरी गुड. अनूप, यू विल नाउ गोइंग टू टेल मी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? Sir, 1. 1. Very good. Okay, so Saga, if you can speak over there, if your device is working very well, then you can also answer by writing. You can also text me. Fe3O4 में आपको फेरस के कितने एटम दिख रहे हैं? Tell me. Saga, are you there? Okay, just text your answer. Okay, 3 atoms of ferrous. Very good. There is some device problem in Saga's phone. Oh, it's okay. He is not audible. He has just texted us. तो फेरस के इसमें कितने एटम है? 3 एटम है. ओके, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है इन दिस इक्वेशन? नाउ मुस्कान इज गोइंग टू टेल. ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? 4. 4. वेरी गुड. एंड हाइड्रोजन के अनूप? Sir, 2. 2. वेरी गुड.
ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे फीरस का एक एटम है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? दिख रहा है स्क्रीन पे नंदिता? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे एक एटम है, तो राइट हैंड साइड पे कितने एटम है? 3. 3। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं एक एटम पार्टिकल, एक एटम फीरस का डाल के मेरे को 3 एटम ऑफ फीरस का मिल सकता है क्या नंदिता? नहीं. नो। वेरी गुड। तो हम इसी चीज को बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने 1 ग्राम चीनी डाली है तो हमें 10 ग्राम चीनी ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, ठीक है। जितना हमने ऐड ऑन किया है उतना ही हमें मिलेगा, जितना मास हमने रिएक्टेंट में डाला है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में भी मिलेगा। वी कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा, ओके, एंड वी ऑल्सो विल नॉट गेट लेस ऑफ दैट, it will just convert in another form, but we will get that mass equal to the reactant to the product. Got it? So we are going to discuss it now. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फीरस को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। किसको इक्वल कर लेते हैं? फीरस को ही इक्वल कर लेते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन को इक्वल कर लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो आपका 2 है, तो इसको इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, H2O है ना, तो इसमें हाइड्रोजन तो आपका इक्वल है, बट आपका ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इस साइड पे 1 है और इस साइड पे कितना है? 4 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन को इक्वल करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इधर 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे नंदिता? नंदिता, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो बताओ, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 1 है, राइट हैंड साइड पे ये 4 है, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4 के इक्वल हो जाए? 4 से. 4 से। वेरी गुड, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है आपका, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो इसको मेरे को 4 के इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो किसमें था? हाइड्रोजन में था ना, H2O में था, सॉरी H2O में यानी वाटर में था। तो वाटर में आपका ऑक्सीजन इधर 1 था, और Fe3O4 में आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था? 4 था। तो एट देन सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन ही ले लिया है, और ऑक्सीजन लेने के बाद मैंने ऑक्सीजन इधर 4 था, तो इधर भी 4 करने के लिए 1 के साथ उसको 4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही मैंने इसके साथ इसको गुणा किया है, तो ये आपका कितना हो गया? Fe3 4H2O, Fe3O4 और H2, ये आपका बन गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फीरस के एक एटम हो गए, हाइड्रोजन के 2 × 4, जब ये 4 इसके साथ ऐसे लगा होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता है। गॉट इट? तो ये कितना हो गया? 2 × 4। नाउ आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग 8 एटम। कितने एटम हो जा रहे हैं? 8 एटम। आफ्टरवर्ड ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है? ऑक्सीजन इज गेटिंग 4। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपका कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब आप जब देख रहे हैं यहाँ पे फीरस आपका इधर 1 है, इधर आपका 3 है, ठीक है। यहाँ जैसे आपने किया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आपका कितना हो गया यहाँ पे? जस्ट टेल मी दैट। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया? 8 हो गया। कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए। 4 × 2 8 एटम्स हो गए, ठीक। तो अगर इधर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, तो हमारा राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए? मुस्कान? 8. 8। वेरी गुड, ओके, सो गॉट दैट। तो हम इसी चीज को करते हैं। अब हम हाइड्रोजन को 8 एटम्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 8 एटम किया था, ठीक, हाइड्रोजन का। अब हम हाइड्रोजन जो कि राइट हैंड साइड है, अब हाइड्रोजन में हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा? नंदिता? 4
4 से, वेरी गुड, बिकॉज 2 atoms आर देयर, ठीक, एंड ओवर हियर वी हैव टू गेट 2 atoms, so we are going to multiply it by 4, ओके। सो हमने उसको संतुलित करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हाइड्रोजन भी 8 हो गया, इधर ये भी 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन अभी फीरस 3 है। फीरस इधर कितना है, 3 है, तो हमारा एक स्टेप और बच गया। राइट हैंड साइड में हमारा फीरस 3 है, ठीक। हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हमारा बचा क्या, फीरस। तो अब फीरस को बैलेंस करना है, तो फीरस को बैलेंस करने के लिए अगर राइट हैंड साइड में ये 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिद्धार्थ? 3 से। 3 से, वेरी गुड, ओके। समझ गए ना बैलेंसिंग कैसे होगा? सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर 3 of ferrous, 4 of H2O, Fe3O4 plus 4 of H2. This gives you balanced chemical equation. Means अब आपका right hand side and left hand sides are just equal to each other, and the atoms of left hand side is just equal to the right hand side. Means the atoms of reactant will get equal to the atoms of product. अब यहाँ पे आपका अभिकारक के जो परमाणु थे, देखो फीरस के 3 राइट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के भी कितने हो गए, फीरस के 3, ठीक। हाइड्रोजन कितने, 8, और इधर भी 8 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, 4 × 1 यानी कि 4 है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है, यानी कि उत्पाद के एटम्स जस्ट इक्वल हो गए किसके, प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये समझ आ गया बच्चों कैसे करना है। सो the number of atoms is just has got equal to the left hand side to the right hand side. You will have to just first of all, the first step was to write its atom to the left hand side to the right hand side, and afterward, after writing this, you are going to do what, you are going to write its initials, and then you are going to balance it step by step as per you have taken oxygen. At left hand side it was 1, at right hand side it was 4. You had just multiplied this by 4 and you got 4 of oxygen at the left hand side and 4 of the oxygen at left hand side. But on multiplying this on left hand side, hydrogen also get multiplied with 4 and it becomes 8, and for that, to balance that 8, we had just multiplied hydrogen with 4 to the right hand side, and we had just got equal hydrogen as well, 8 atoms on both sides. And afterward we saw that hydrogen and oxygen had got equal, but ferrous still remains 3. So to equalize that, we just multiplied ferrous with 3 on the left hand side to make it equal to the right hand side. That is how we had balanced the equation, and that method to balance the equation by assumption, that is called your hit and trial method. Okay, you have just picked and just multiplied, you have just picked and just multiply. You can also change that numbers whenever you will get its importance to change it, you can change it. Okay, so the method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient, and that method is called hit and ट्रायल मेथड, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल ही कर रहे हैं ना, कि हमने एक उठाया दूसरे की जगह लगाया, दूसरा उठाया दूसरे की जगह लगाया, फिर हम देखते हैं जब तक ये इक्वल हो नहीं जाता तब तक हमें क्या करना है, इस पर ट्रायल्स करते रहना है। एंड जब ट्रायल आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, बोथ साइड्स का बैलेंसिंग इक्वल हो जाएंगे, एटम्स इक्वल हो जाएंगे, एट देन द इक्वेशन इज करेक्ट एज पर द बैलेंसिंग. Okay, so this method is called your hit and trial method. So you can also say that the method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Okay, so now step 6 is you will have to write symbols of physical state as well. What you have to write symbols of physical state as well, as in which form you are getting it. Okay, कि ये एटम सॉलिड है, लिक्विड है, क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए. गॉट इट. तो यहाँ पे हमने यही देखा कि फीरस किस में था, सॉलिड. एस एस सॉलिड, कल मैंने आपको बताया था इसके सिंबल्स के बारे में. जी एस गैस, एस एस अगेन सॉलिड, जी एस गैस. ठीक है, तो ये आपने सॉलिड और गैस के साथ रिएक्ट किया तो आपको एज वेल एज ये रिएक्शन होकर
ठीक है, आपको क्या मिला, सॉलिड एंड गैस ही मिला, और इसमें रिएक्शन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो these are again two example for that, to which you will have to balance। okay, this is for your homework। तो आप इसे आप क्या करेंगे, बैलेंस करके देख लेंगे कि अगर ये बैलेंस है देन वेल एंड गुड, अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इसमें कोई भी एटम एक्स्ट्रा नहीं होगा, बोथ एटम्स बोथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल द एटम्स will be equal, should be equal। okay, अगर यहाँ पे equal नहीं है then you will have to make it equal। got it everyone? Yes, sir. okay, these are the some questions you will have to solve from your homework, and इसमें से अगर आपको कुछ नहीं पता तो पहले आप बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसके बैलेंस इक्वेशन लिखने केमिकल इक्वेशन के, तो बैलेंस इक्वेशन लिखने से पहले तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक कन्वर्जन करना है और इसका इक्वेशन लिखना है करेक्टली फॉर्म में। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड इज गिविंग टू यू डजंट मेक सेंस व्हेन यू आर नॉट राइटिंग इट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, बिकॉज इट इज़ वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में आपको ये नहीं पता चलेगा हाइड्रोजन में कितने एटम है, क्लोरीन में कितने एटम है, तो आपको ये एटम्स रिगार्डिंग लिखने के लिए आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको 2HCl आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा, वर्ड फॉर्मेशन से चेंज करके सिंबॉलिक फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा। आफ्टरवर्ड यू आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड आफ्टरवर्ड यू आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इसको बैलेंसिंग करके आपने इसे लिखना है। ठीक है, समझ गए? हिंदी इसको हमने क्या है, संतुलित करना। अब ये संतुलित करना आपको मैं सीधा से आपको ये बता दूं क्या कहलाता है कि देखो भौतिक अवस्थाओं में आपको संकेत लिखना है। तो सबसे पहले आपके इसको जान लेते हैं क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की जो हम ये विधि कह रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, हिट और ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलन करने का क्या किया गया है, प्रयत्न किया गया है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि सेटिस्फाई करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सेटिस्फाई, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब ये क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। गॉट इट? अब आपने मुन्ना को 4 रुपया दे दिया, टुन्ना को 8 रुपया दे दिया, तो मुन्ना को क्या लगेगा, दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दोनों को 8 रुपया देना पड़ेगा ना, तो इक्वल करो। गॉट इट? तो सेकेंड थिंग इज भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी कि ये किस फॉर्म में है, या सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ओवर हियर यू हैव राइट सॉलिड एज सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, G एज गैस यानी कि गैस अवस्था में, L लिक्विड होता है, लेकिन ये सॉलिड और गैस का आपका रिएक्शन था तो सॉलिड और गैस ही आपको प्रोवाइड किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए सेम है कि आपको क्या करना है, अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। क्या करना है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम 9वीं में अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया करने के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना तो ही वो बाहर से मिश्रण में आता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ना उसमें कोई बाहर से कुछ आता है ना अंदर से कुछ बाहर जाता है। ठीक है, उसमें जो रिएक्शन होता है तो उसी के एटम्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। गॉट इट? So we will have to read about the types of chemical reaction as we have already know about in class 9th that chemical reactions in atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Means atoms from outside will not get added and from inside it will not get disappear. It will just convert from one form to another, and the bonding of one atom will get attached to another atom or substance. Okay, so reaction involve breaking and making of bonds between the atoms of that particular reacted substance. Okay, so that will produce new substance. Okay, so over here you will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4.
But over here we will read about types of chemical reaction. Okay, so bond formation के बारे में जो होगा हम चैप्टर 3 एंड 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके इसी क्लास 10th में ही है। अभी जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके आबंध के बारे में हम 3 और 4 अध्याय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्रिया आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। तो हम ये जान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, संयोजित का मतलब क्या होता है, हम यही सब जानेंगे। सिद्धार्थ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयोजन? इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, जुड़ना। जुड़ना, वेरी गुड, ठीक है। तो संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन का आपको हम अब ये बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला पार्ट लिया है संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजक अभिक्रिया को क्या कहते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक उपयुक्त परिस्थिति के अंतर्गत संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. in आप कह सकते हो कि when more than 2 substance or 2 reactants will react with each other to form a single substance, that is called combination reaction। यानी कि 2 substance आपके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या हो रहे हैं, एक में जुड़ जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ओवर हियर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एंड वाटर एज इन लिक्विड स्टेट। जब हमने दोनों को रिएक्ट किए, ठीक, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलने से कौन सा सोल्यूशन बनाता है, एक्वस सोल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, एक्वस सोल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो ये हमें क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, और ये क्विक लाइम को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, आपको क्या मिला, स्लेक्ट लाइम प्लस हीट, या आप क्या कह सकते हो, बुझा हुआ चूना, ठीक। तो बुझा हुआ चूना को आपने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, आपको मिला, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना को आपने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिला बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो आपने जैसे ही किसको, क्विक लाइम को आपने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, यू गेट स्लेक्ट लाइम। मीन्स बिना बुझा हुआ चूने को आपने पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको मिला बुझा हुआ चूना प्लस हीट। आपने घर पे देखा ही होगा कि जब आप बाल्टी में चूने को डालते हैं पेंट करने के लिए, तो आप क्या हो जाता है, वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, बुलबुले उसमें आने लगते हैं। देखे कि नहीं देखे मुस्कान? देखे। तो ये वही रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, उसी चूने के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, जैसे चूना पानी में डालते हो तो एक्वस सोल्यूशन बनाता है, जल की तरह बना जाता है, यानी कि पूरी तरह लिक्विड भी नहीं होता, पूरी तरह सॉलिड भी नहीं होता है, वो घुल के एक दलदल टाइप देखे ना, उस टाइप का बना लेता है, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, जेल फॉर्म, ठीक, जेल के फॉर्म में बना लेता है, और उसी एक सोल्यूशन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक जल के रूप में ही बनाएगा, फॉर्मेशन जैसे आपने एटम्स सब्सटेंस यूज किए हैं उसी हिसाब से वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्वस सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बता रहा था, लेकिन संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अब बस इसको जान लो कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कोयले का दहन का, जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया विद ईच अदर एंड इट प्रोवाइड अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन वाज सॉलिड एंड ऑक्सीजन वाज गैस, एंड दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो ये दोनों एक दूसरे में कंबाइंड होकर हमें क्या दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमें किससे मिला है, किसके संयोजक से मिला है,
कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजक से मिला है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? शुड वी मूव अहेड? आगे बढ़ा जाए बच्चे? नंदिता? Yes, sir. ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अब यहाँ पे H2 प्लस O2 इन दोनों को हमने रिएक्ट किया, दोनों गैस था, हमें क्या मिला? लिक्विड में H2O यानी कि वाटर मिला। ये दोनों क्या है? संयोजक अभिक्रिया है। अब ये संयोजन अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कईयों में क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अभिक्रिया होने से मिश्रण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो जब ऐसी अभिक्रिया होंगी तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा यानी कि हीट। यानी कि in some equation, in some reaction, we are saying that on reacting or making a single product from two substances in combination reaction, some heat also used to get released, and the mixture we are getting used to get heat, and the heat will get which will get produced from it, that will called what? Saga? Exothermic reaction, that will called exothermic reaction. Okay, so we are discussing about exothermic reaction about here. तो हम उसको अभी हमने एक एग्जांपल ऊपर देखा था, किसका? बिना बुझा हुआ चूने को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या मिला था? बुझा हुआ चूना प्लस हीट। उसमें रिएक्ट आई थी कि नहीं आई थी? उसमें आई थी कि नहीं आई थी? वो गर्म हो गया था ना। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. Okay, other example of exothermic chemical reaction are burning of natural gas CH4, that is methane, that used to burn with oxygen. So over here you will get carbon dioxide and H2O as a gas, not as a liquid. ठीक है, H2O as a gas. ठीक है, so next we are going to move ahead. अच्छा, फॉर योर फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू डैट कि जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन क्रिया के साथ खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इसके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या देती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो दैट रिएक्शन इज गिवन टू यू ओवर हियर, दैट हाउ ग्लूकोज इज प्रोवाइडिंग यू एनर्जी। ओके, सो whenever we are going to eat rice, we will have to remember that we are getting energy from it. And how we are getting energy from it? These all are carbohydrate, and by breaking it we get glucose as a product. Okay, so you can also say that glucose with reaction with oxygen get break down and it formed carbon dioxide, water, and also provide you energy after getting breaked. Okay, तो साग सब्जी जितने भी वनस्पति या विघटित होकर क्या करते हैं? कंपोस्ट बनाकर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल पे जब हमने पढ़ा है तब इसके बाद हम जाते हैं दूसरे अभिक्रिया के बारे में, जो कि है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इट इज कॉल्ड? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, कोई बता सकता है इसका मतलब, दूसरा मतलब हिंदी में कोई बता पाएगा? सिद्धार्थ? वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं? एनी आइडिया रिगार्डिंग इट?
So today you are going to do balancing, and as well as you are going to read till combination reaction. Tomorrow we will going to discuss about other types of chemical reaction and the type of decomposition reaction. So that was all for today, and to read more and to know more, get attached with us. Join us on jasacademy.minimal.com, or you can also download our application from Play Store of Jas Academy. You will have to just try it over there, Jas Academy. You will get a symbol of over there, and afterward you will have to just log in Jas Academy, and you will get connected with us. Okay, all the best for the future, and read more with us, join with us. We are going to also make your preparation for other exams such as SSC, JEE, and many more. So make your future bright. Subscribe the channel and join as soon as possible to make your studies more interesting. Thank you very much. Have a nice day.